नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में घटते कामकाज पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताई चिंता। कहा, बहस की जगह बढ़ा टकराव। 69वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र का संबोधन। राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद को शय देना बंद करें पड़ोसी देश। सीमा पार आतंकवाद से सख्ती से निपटने पर जोर। कहा, आतंकवादियों का नहीं होता कोई धर्म और ईमान। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 69वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया और इस खास मौके पर उन्होंने लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने संसद में व्यवधान पर चिंता भी जाहिर की। Our institutions of democracy are under stress. The parliament has been converted into an arena of combat rather than debate. It is time to recall what Dr. B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee of the Constitution, said while making his closing speech in the Constituent Assembly in November 1949. And I quote, "The working of Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The Constitution can provide only the organ of state such as the legislature, the executive, the judiciary. The factors on which working of these organs of the state depends are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Who can say how the people of India and their parties will behave?" Unquote. If the institutions of democracy are under pressure, it is time for serious thinking by the people and their parties. The correctives must come from within. ने माना कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर बीते एक दशक में तेजी के साथ तरक्की की। हालांकि राष्ट्रपति ने जोर दिया कि इसका फायदा गरीबों तक पहुंचाने की जरूरत है। Our performance over the last decade has been commendable, and it is most heartening that after a dip, we have recovered to 7.3% growth in 2014-15. But the benefits of growth must reach the poorest of the poor much before they land in the bank accounts of the richest of the rich. We are an inclusive democracy, an inclusive economy. There is place for everyone in the hierarchy of wealth. But the first call goes to those who suffer on the brink of deprivation. Our policies must be geared to meet the zero hunger challenge in a foreseeable future. और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर देने की बात कही। Our educational institutions multiply as the aspirations of generations continue to exceed supply. But what has happened to quality? From base to apex, we recall the Guru Shishya Parampara with a legitimate pride. Why then have we abandoned the care, devotion, and commitment that is at the heart of this relationship? A guru, much like the soft and skillful hands of a potter, molds the destiny of Shishya. The student, with devotion and humility, acknowledges the debt of the teacher. Society respects and recognizes the merit and scholarship of the teacher. Is that happening in our education system today? राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा और हमारी नीति आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन न करने की बनी रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देशों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके भूभाग का उपयोग भारत के प्रति वैर रखने वाली ताकतें न कर पाएं।
India is a target of vicious terrorist groups operating from across the borders. Except the language of violence and the cult of evil, these terrorists have no religion and adhere to no ideology. Our neighbors must ensure that their territory not used by forces inimical to India. Our policy will remain one of zero tolerance for terrorism. We reject any attempt to use terrorism as an instrument of state policy. Infiltration into our territory and attempts to create mayhem will be dealt with a strong hand. और राष्ट्रपति के संबोधन को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स से विनोद शर्मा जी। विनोद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जिस तरीके से संसद में व्यवधान को लेकर चिंता जाहिर की है, किस तरीके के संकेत आप देखते हैं? और असल में जो मर्म है, मैं कहूँ कि काफ़ी पीड़ा दिख रही है उनके संबोधन में इस पूरे मसले को लेकर। देखिए, मैं ये शुरुआत ये कह करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपिता तो नहीं होता, लेकिन पिता सरीका होता है। और आज जो बात राष्ट्रपति ने कही, और ये जो अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है, ये स्वयं लिखा गया होता है उनके द्वारा। ये सरकार के कहने पे दिया हुआ भाषण नहीं होता है। गणतंत्र दिवस वाला भी उनका स्वयं का भाषण होता है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले जब सक्रिय राजनीति में थे, तो खासकर इसलिए थे कि उनको पार्लियामेंट में बहुत दिलचस्पी थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत दिलचस्पी थी। और बार बार उन्होंने इस बात को कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो डिबेट के लिए है, लेजिस्लेट करने के लिए है, कॉम्बैट के लिए नहीं है, लड़ाई के लिए नहीं है। लड़ाई हो जाती है बीच में, गतिरोध हो जाता है, लेकिन गतिरोध जो है वो पार्लियामेंट का तेवर नहीं है, संसद का तेवर गतिरोध नहीं है। संसद का तेवर जो है लेजिस्लेट करने के लिए होना चाहिए और डिबेट करने के लिए होना चाहिए। और उसी श्रृंखला में आज राष्ट्रपति ने ये बात कही है। यूपीए के कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने यही बात कही थी, जब गतिरोध पार्लियामेंट में था। लेकिन कुल मिलाकर जो ये अभिभाषण है राष्ट्रपति का, इनमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के 3 दिग्गज नेताओं को उन्होंने कोट किया है। डॉक्टर अंबेडकर, उनको कोट किया है। जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, कि अंबेडकर साहब ने कहा कि हमने इंस्टीट्यूशंस आपको बना के दे दिए हैं। अब इनका क्या होगा, ये जनता और उनके द्वारा मनोनीत की गई पार्टीज डिसाइड करेंगी। एक सवाल छोड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने, और उस सवाल का शायद आज के दिन ऐसा जवाब मिला जो कि विचलित कर रहा है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ने इसीलिए इस बात पे तवज्जो दिलवाई कि वहाँ पर बहस और लॉ मेकिंग होना चाहिए, गतिरोध नहीं होना चाहिए जितना कि हो रहा है। दूसरा कोट किया उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और उनको कोट किया सामाजिक सौहार्द के संदर्भ में। और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो अनेकता में एकता का जो सूत्र है जिससे भारत बंधा हुआ है, अदृश्य धागों के साथ, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। और जब इन तीनों चीज़ों पे व्याख्यान करने के बाद वो इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी जो है हमारी बढ़ रही है, 7.3% इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो ग्रोथ है ये इंक्लूसिव होना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जो हाशिए पे बैठे हैं। और ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ अमीरों को और ज़्यादा अमीर ना बनाए, जो गरीब हैं, जो धन अर्जित होता है इस ग्रोथ से, उसको बराबर से बांटा जाए, सबका उसमें एक स्टेक हो। और जब आतंकवाद की वो बात करते हैं तो फिर हमको ये समझ लेना चाहिए, आतंकवाद, सामाजिक सौहार्द और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों जुड़े हुए हैं एक ही सूत्र में। राष्ट्रपति ने उतनी पुख्ता तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जब उनका अभिभाषण आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो सामाजिक सौहार्द इस देश में बहुत ज़रूरी है, और आतंकवाद पे अंकुश लगाना इस देश में ज़रूरी है। और आतंकवाद पे अंकुश लगा के ही हमारा जो नेबरहुड है, हमारा जो पड़ोस के मुल्क हैं, वहाँ पर शांति हो सकती है और भारत के भीतर शांति हो सकती है, सामाजिक सौहार्द और आतंकवाद पे रोक लगाकर। तो
ये जब सब श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हमको इफेक्टिव लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी, अच्छी डिबेट करनी पड़ेगी और कम गतिरोध करना पड़ेगा। और इस सब का इस सब का जो डिपेंडेंस है, दारोमदार जो इसका है वो सरकार पे है और आज के विपक्ष पे है। ये उन्होंने कुल मिला के बात कही है। और देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका देता है। राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है इस देश की। राष्ट्रपति इसलिए भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट पूरी नहीं होती बिना राष्ट्रपति के। पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसीलिए जब जॉइंट सिटिंग होती है जिसमें कि सरकार की पॉलिसीज का पे व्याख्यान करते हैं राष्ट्रपति, तो वो पूरी पार्लियामेंट होती है, उसमें राष्ट्रपति स्वयं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा भाषण है। एक ऐसे विद्वान व्यक्ति ने भाषण दिया है जिसने इतने लंबे समय काल तक सक्रिय राजनीति में रहे हैं, विभिन्न ओहदों पे रहे हैं, इस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री को छोड़ के सब आला मिनिस्ट्रीज में उन्होंने काम किया है। और जो उनके पास आज के दिन इल्म की धरोहर है उससे फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, यही देखना होगा कि जो उन्होंने कहा, जो संकेत उन्होंने दिए, एक तरीके से संकेत का मैं कहूँ सीधे तौर पर संदेश है। और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत को भूख मुक्त करना है, हंगर फ्री इंडिया, हंगर फ्री इंडिया, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। और एक सुंदर बात और थोड़ी सी झंझोड़ने वाली बात जो उन्होंने कही, और मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ एग्जैक्टली जो राष्ट्रपति ने कहा है। उन्होंने कहा है, ऑन द फर्टाइल ग्राउंड लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन India has blossomed into a vibrant democracy. The roots are deep, but the leaves are beginning to wilt. It is time for renewal. Regeneration का टाइम है, रिन्यूअल का टाइम है। और रिन्यूअल जब भी होगा जब सब पक्ष मिलकर इस जमीन में खाद डालेंगे, अपने इल्म की, अपनी उसको सींचने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम है विनोद जी जो उन्होंने कहा है, और देखना होगा कि किस तरीके से तमाम जो पार्टियां पक्ष विपक्ष उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। यह थी हमारी पहली खबर। शनिवार को पूरा भारत 69वें स्वतंत्रता दिवस का गवाह बनेगा और पूरे भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संदेश देंगे। देश के लिए मौका बड़ा है, लिहाजा खलल डालने वालों के कुछ दहशतगर्द भी नजर गड़ाए बैठे हैं। और वैसे में खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 69वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। देश की सीमाओं पर सेना चाक चौबंद है तो देश के भीतर पुलिस ने कमान संभाल रखी है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकी हमला करने की फिराक में है, लिहाजा हर ओर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। सुरक्षा इंतजामों पर गौर करें तो दिल्ली में इंडिया गेट से लाल किले तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह एंटी राइट स्क्वाड, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। ऊंची ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरों से हर इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर के कई संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, कमांडेंट्स हैं, सेक्टर डीआईजीज हैं, उनको भेजा गया है और उसमें जो जो चीज़ें निर्देश दिए गए हैं कि किए जाने की, संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखना, विजिल बढ़ाना, इन तमाम चीज़ों पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा के बंदोबस्त दुरुस्त कर लिए गए हैं। जगह जगह चेकिंग चल रही है। अलगाववादियों की हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। We planned special operations both day and night, also covering the area ahead of the fence, which we otherwise also do, but as a special measure for the security environment we have undertaken. हाल ही में हुए गुरदासपुर और उधमपुर हमले को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किए गए थे। कुछ दिन पहले सीमा पर भी घुसपैठ की कोशिशें नेस्तनाबूद कर दी गई थीं। उम्मीद यही है कि अमन आगे भी कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। और छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। मॉनसून सत्र के दौरान संसद न चलने देने के लिए सरकार और विपक्ष अब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने अवरोध के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस ने कहा कि कार्यवाही चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर सरकार की ओर से दबाव डाला गया। संसद का मॉनसून सत्र सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों में बीत गया, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच कार्यवाही में बाधा के लिए एक दूसरे पर अभी भी आरोप जारी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कार्यवाही चलाने को लेकर सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर दबाव डाला गया। बीजेपी को न तो विश्वास है लोकतंत्र पे और न ही कंसेंसस पे विश्वास है और न ही वो किसी भी अपोजिशन पार्टी का जो व्यू पॉइंट उसको समझने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसको मानने के लिए कोई इच्छा वो नहीं रखते हैं। हाउस चलाने के मूड में वो खुद ही नहीं थे और वो हमारे ऊपर चोर, वो क्या बोलते हैं ना, उल्टा चोर ये ऐसा हिसाब है, कर रहे तो वो और बोल रहे हमारे ऊपर। कांग्रेस ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के रास्ते में रोड़े अटकाने के आरोपों को भी खारिज किया है। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इसे पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। The courtesy demands and also the democracy also demands that should something government would like to do on these lines, they should, as a courtesy in a democracy, take opposition into confidence. But as of now, I can say we are reading it in the newspapers only. Nobody has talked to us. Nobody has told us anything about it. बुधवार को लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव के दौरान हुई बहस में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम घसीटे जाने पर भी कांग्रेस ने तीखी नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा कि बोफोर्स घोटाले और भोपाल गैस त्रासदी के मामले में गलत बयानी के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को माफी मांगनी चाहिए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल पारित कराने के कांग्रेस की शर्तों को बहानेबाजी करार दिया। बीजेपी ने आज तय रणनीति के तहत कांग्रेस के खिलाफ कई शहरों में पोल खोल अभियान शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कई बीजेपी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संसद में अवरोध और जीएसटी बिल पारित न होने के लिए सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया। बीजेपी ने संसद में गतिरोध और जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के अटकने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने ही तैयार किए बिल पर अब अव्यावहारिक शर्तें लगा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर देश के विकास की कीमत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। Now neither Mr. Chidambaram's proposal as approved by him after the standing committee in 2013 nor the then finance minister's proposal when he introduced the bill in 2011 had any such 18% cap. So that's clearly an afterthought. मॉनसून सत्र खत्म होने के अगले ही दिन सरकार के कई मंत्रियों ने तमाम अलग अलग शहरों में कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत की। राजधानी दिल्ली के अलावा गुजरात में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कर्नाटक, केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राजस्थान में मौजूद थे। बीजेपी ने संसद नहीं चलने का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा है। राहुल गांधी के दबाव में 3 ऐसी मांग रखी गई जिस पर कोई गिव एंड टेक हो ही नहीं सकता है। दोनों मुख्यमंत्री का इस्तीफा कराओ, सुषमा जी का कराओ। क्या उनके पास सबूत थे? सामने आ गए हैं कि ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। Congress has done a great disservice to the country and doing a great disservice to itself by disrupting parliament. It is very unfortunate that 130-year so-called party
president has gone to the well of the house. It was really shocking, sad. We couldn't believe for a while. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही एनडीए ने कांग्रेस के 44 और लेफ्ट के 9 सांसदों के क्षेत्रों में पोल खोल अभियान चलाया है। इसमें तमाम नेता संसद में अवरोध और बिलों के अटकने के लिए कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार की कोशिशों के बावजूद जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें धरने से हटाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व सेना कर्मियों ने हटने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो अब धरने से तभी हटेंगे जब सरकार वन रैंक वन पेंशन सुविधा का ऐलान करेगी। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन शुक्रवार को उस समय उग्र हो गया जब 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। हालांकि जबरदस्त विरोध के बाद दिल्ली पुलिस को पीछे हटना पड़ा, लिहाजा प्रदर्शन जारी है। पूर्व सेनाकर्मियों का कहना है कि अब वो धरने से तभी हटेंगे जब सरकार सुविधा का ऐलान करेगी। अगर पुलिस को इतनी प्रॉब्लम थी तो पुलिस हमसे 3 दिन पहले आके बात कर सकती थी, हमसे आके डिस्कस कर सकती थी, हम इसका एक वे आउट निकालते। कानून हम जानते हैं क्या है, हम डिसिप्लिन जानते हैं, हम तो कानून दूसरों को सिखाते हैं और हमको कानून कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। We have given our youth, we have given our life to this country. Don't say we are threat to the country. वहीं सरकार अब भी अपने वादे पर खरा उतरने का भरोसा दिला रही है। That government has to do it during his tenure and we will do it quite early. I am not saying at the end of it. But there are technical difficulties. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शुक्रवार को जंतर मंतर पहुंचे और पूर्व सैनिकों की मांगों का समर्थन किया। सीधी बात है, प्रधानमंत्री को डेट दे देनी चाहिए। अगर वो कह दें कि इस डेट में ये काम हो जाएगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मांगों का समर्थन करते दिखे। वन रैंक वन पेंशन तो सारी पार्टियां कह रही थी हम करेंगे, अब सत्ता में आने के बाद उनको लागू करना चाहिए था, पर चलो वो लागू नहीं कर रहे, संघर्ष कर रहे थे ये लोग इनके ऊपर, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। दरअसल वन रैंक वन पेंशन वो सुविधा है जिसके बाद अलग अलग वक्त पर रिटायर हुए फौजियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। यूं तो इस सुविधा की मांग सालों से चली आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वादे के बाद से ये मांग और मुखर हो गई है। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में इस मांग को जल्दी पूरा करने का वादा किया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार महीनों से प्रदर्शन कर रहे इन पूर्व सैनिकों को कब राहत देती है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने फिलहाल आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। आयोग ने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अगले आदेश तक मतदाताओं से आधार नंबर जमा करने की प्रक्रिया निलंबित करने को कहा है। आयोग एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज नाम को हटाने की कवायद के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची से लिंक कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकारी योजनाओं के फायदे के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को करीब 66,000 करोड़ रुपए का लाभांश देगी, जो पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा है। सरकार को 80 साल में पहली बार इतना बड़ा लाभांश मिल रहा है। इससे राजकोषीय घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। आरबीआई सरकार को 2014-15 के लिए 65,896 करोड़ रुपए का लाभांश देगी। गुरुवार को आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। पिछले साल ये राशि 52,679 करोड़ रुपए थी। पिछले साल करीबन 56,000 करोड़ ट्रांसफर हुआ था। इस बार 22% एडिशनल ट्रांसफर हुआ है, which is obviously a result of operations that have probably increased, and it is actually a result of that. So it is not really unprecedented. Next year probably as the government does better, maybe you will see more of it being transferred. सरकार को इससे वित्तीय मामलों में मदद मिलेगी। वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी भी आएगी और ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिलेगी। बजट भी 64,500 करोड़ का था, उसके अगेंस्ट 65,896 करोड़, करीबन 65,000 करोड़ गया है गवर्नमेंट को। बहुत अच्छा किक स्टार्ट होना चाहिए इकोनॉमी को, इससे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आना चाहिए।
केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और बैंकों का बैंकर होने की वजह से आरबीआई के पास आय के कई स्रोत होते हैं। इसमें सरकारी सिक्योरिटीज की होल्डिंग, बैंकों को दिए गए कर्ज पर मिलने वाला ब्याज शामिल है। इसके अलावा दूसरे स्वतंत्र बॉन्ड की होल्डिंग से भी आरबीआई की कमाई होती है। हर साल अपना खर्च और कुल लाभ में से कुछ हिस्सा रखकर आरबीआई बाकी राशि सरकारी खजाने में ट्रांसफर कर देती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी हटने के बाद ईरान और भारत ने आपसी संबंधों को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी। इस बारे में बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ 2 दिन की यात्रा पर दिल्ली में। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में शांति के मसले के अलावा चाबहार बंदरगाह को जल्दी शुरू करने के उपायों पर बात की। इस मुलाकात में पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया के हालात और शांति को स्थापित करने के लिए दोनों देशों के सहयोग पर भी विचार किया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने तेल, गैस, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और उर्वरक क्षेत्र में भारत को सक्रियता से काम करने के लिए न्योता भी दिया। It's a number of areas where we have discussed. Rail link is one of them. Engaging in greater cooperation in Chabahar, petrochemicals and other areas. There is a whole range of possibilities that we have been discussing, and I believe there is a commitment on both sides, on India and Iran, to engage in those. We want Iran to regain its share of India's oil imports, and we expect Iran to also make efforts to help promote participation of Indian companies. In this context, there was a discussion on the Farzad B oil field, which, as you know, an Indian company OVL had successfully discovered. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों और जर्मनी के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद से ईरान पर से प्रतिबंध हटे हैं। इसकी वजह से ईरान के सामने नई उम्मीदों का रास्ता खुल गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इस पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान की जेल में बंद 9 भारतीय नाविकों की रिहाई की मांग की और उन पर लगे आर्थिक दंड को माफ करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने जहाजरानी और यातायात मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच चाबहार बंदरगाह को चालू करने पर विस्तार से चर्चा हुई। ये बंदरगाह बन चुका है, भारत इसे शुरू करने की कोशिशों में लगा हुआ है। We are at an advanced stage of 2 very important ongoing projects related to Chabahar as well as the international north-south transport corridor. On Chabahar, we now have to operationalize the intergovernmental memorandum of understanding signed by Mr. Nitin Gadkari during his visit to Tehran in April. ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मध्य एशिया की स्थिति पर सलाह मशवरा किया। ईरान मध्य एशिया के मुहाने पर है और भारत से ये समुद्री रास्ते से सीधा जुड़ा हुआ है। ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए अहम है और भारत की पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान में भूमिका में ईरान काफी मददगार साबित हो सकता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विज्ञान और तकनीक को लोक संस्कृति का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात दिल्ली में गुजरमल मोदी साइंस फाउंडेशन पुरस्कार समारोह के दौरान कही। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार इस साल प्रोफेसर उसांसर वर्मा को दिया गया है। पुरस्कार 1988 से हर साल दिया जाता है। It is essential to make science and technology an essential part of the culture of the people. The popularization of science and technology must make such knowledge a central component of culture, of social awareness and of collective intelligence. तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।